Hello dear students, this is Hari from English classes. Welcome to my YouTube channel and today my topic is A Tiger in the Zoo of a Standard 10th. This is the third lesson of First Flight and today in this video I will try to cover about the poet, about the introduction to the poem, about summary of this exercise, about title and the theme of this lesson guys. So first of all we will discuss about the poet. Okay, so see please. George Leslie Norris was born on 1921 and he died on 2006. He is a well-known Welsh poet and short story writer. He is a well-known Welsh poet and short story writer. उसे एक Welsh poet और short story writer के नाम से भी जाना जाता है. He taught in educational institutions in Britain and America. Guys, when he just completed his studies and after that he started to pass his career in educational places. It means he started to teach in the educational places in Britain or America. He published his first poem in 1938. Whatever the poem was written by Norris, okay, he published the first poem in 1938. At that time, he was very busy. He became very famous after publishing the first poem in 1938. He got a lot of the things with the help of that of the poem. So, and his first collection of the poems was published in 1943. मतलब 1938 में पब्लिश होने के बाद जस्ट आपके 1943 में उनका एक कलेक्शन ऑफ पोम्स को पब्लिश किया गया. His poems won many prestigious prizes and awards such as Cholmondeley Prize and AML Award for Poetry 1996. 1996 में उन्हें एक AML Award for Poetry के नाम से उसे खिताब दिया गया and that was a very grand successful for the Norris. Okay, he didn't think even himself that means he will get like this. But it was unbelievable for the Norris, okay, and he was a very calm, quiet and fully conscious person, okay. He was a very deep-hearted man. He was a very delicious person, okay. He was also a fellow of the Royal Society of Literature. उन्हें Royal Society of Literature का fellow भी कहा जाता था guys. So here we have just seen about the poet. Now we are just going to discuss about introduction to the poem students. Okay, and now this explanation will be very easy and I will try to cover all these words. So let's see please. Through his poem A Tiger in the Zoo, Leslie Norris has underlined the importance of preservation of wildlife in natural habitats. गाइस, हम उनके पोएम के जरिए से, उनकी कविता के जरिए से हमारा यहाँ जो पोएट है, जो कवि है, वो एक अंडरलाइन किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट्स, कि हमारे जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें बचाव करना चाहिए, उन्हें संरक्षण करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए और उनका जो नेचुरल हैबिटेट्स होता है उन्हें उसी जगह पर रह दिया जाना चाहिए. सपोज द एनिमल्स विच आर in the jungle and we just try to bring at the home, we just try to bring and we will just keep them inside a bar, under the bar. At that time they will not feel very good as they feel in the jungle. So it happens. So the poet has emphasis, the poet has forced and poet has also contrasted the real and the ideal states of living for a caged tiger. He advocates freedom for all wild animals. यहाँ पे कवि ने बताया है गाइस, यहाँ पे कवि ने बताया स्टूडेंट्स कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स को आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए. अगर हम उन्हें कैप्टिविटी करके रखेंगे तो वो उतना अच्छा महसूस नहीं करेगा जितना कि वो जंगल में करता है. इसलिए जिस प्रकार से मानव फ्री होता है, मानव आज़ाद होता है, ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स को भी फ्रीडम चाहिए. ठीक है, एज वी आर गेटिंग फ्रीडम वी फील वेरी कूल, काम एंड क्वाइट, good inside the area, in the society, as it happens also with the animals. Okay, they also need a freedom, they also want to move freely here and there and they can get prey, they can kill to some another animals for his flying, for survival. Okay, so it happens with them. No animal can be happy in captivity. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि नो एनिमल कैन बी हैप्पी इन कैप्टिविटी. अगर हम किसी भी एनिमल्स को हम
किसी के अंडर में कर देंगे या फिर उसको सेल के अंडर में डाल दें या केस के अंडर में डाल दें, देन दे विल नॉट फील गुड, दे विल नॉट फील स्ट्रेंथ, कि उतना ज़्यादा वो मजबूती एहसास नहीं करेंगे, दे विल नॉट फील पावरफुल दैट दे हैव अ कैपेबिलिटी, दे हैव अ कैपेसिटी। ओके, so as in this case with this all women's, the tiger which is in a cage is indifferent and unhappy. The tiger which is inside a cage, the tiger which is under a cell, okay, they don't feel very good, they feel that indifferent and unhappy, वे बहुत ही ज़्यादा महसूस नहीं करते अच्छे, वे अपने आप को इंडिफरेंट महसूस करते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे बताया गया टाइगर के बारे में कि एक टाइगर है जो उसे चिड़िया खाना के जू में, यानी कि चिड़िया खाना के छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, वेयर देर इज़ अ लिमिटेड एरिया, जहाँ एक छोटी सी कमरा होती है, ठीक है, एंड ही कैन वॉक इनसाइड दी प्लेसेस, और वो उसी प्लेसेस के अंदर में उसे मूव करना पड़ता है। तो वह अपने आप को इंडिफरेंट महसूस करता है, अनहैप्पी महसूस करता है गाइज। इफ वी वर इन द फॉरेस्ट he would love to stalk, if he were in the forest he would love to stalk and kill his prey. stalk मतलब क्या होता है गाइस? stalk का मतलब होता है walks with pride, यानी कि अकड़ कर के चलना, गर्व से चलना। ओके, अगर मैं उसे खुला पिंजरे से बाहर यानी कि जंगल में छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली कि जो टाइगर होगा वो स्टॉक्स करेगा, मतलब वो अपने आप को गर्व से अकड़ करके चलेगा, एंड किल हिज प्रे, और वो अपना शिकार भी करेगा। सो किलिंग सम एनिमल्स फॉर हिम इज नॉट अ गेम बट अ नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। हम लोगों को पता है कि टाइगर जो है बहुत सारे एनिमल्स को अपना शिकार बनाता है, तो दैट इज नॉट अ गेम फॉर द टाइगर, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल, मतलब उनके जीवन के लिए, उनको जीवित रहने के लिए, उनको लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उन्हें भोजन चाहिए, और वो अपना भोजन के लिए ही दूसरे एनिमल्स को अपना शिकार बनाता है गाइज। सो हियर इट वॉज द short explanations of introduction to the poem. Now we will discuss about the summary, students. So we have to focus in the summary, and I will try to cover all explanations, I will try to cover all this stanza. There are 5 stanza in the poem guys, A Tiger in the Zoo. So let us see one by one. So students, first of all we'll discuss about a tiger in a cage. When tiger is in a cage, at that time what does he feel, what happens with him, उसके साथ क्या होता है, क्या महसूस करता है। ओके, तो we will see this point guys. So let's see please. Moves about in his cage, he moves with quiet ease on his soft velvet feet, he doesn't seem happy in the zoo. यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्टूडेंट्स, स्ट्राइप्स। हम समझेंगे कि ये स्ट्राइप्स का मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स। ये स्ट्राइप्स का मतलब होता है एक, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ लाइंस, यानी कि उनके मतलब बॉडी के ऊपर में काले और ऑरेंज कलर के, यानी कि ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का एक छोटे से धब्बा, छोटा छोटा धब्बा उनके बॉडी पे बना होता है, स्ट्राइप्स बना होता है। ओके, एंड हियर वी विल सी ऑल्सो द टाइगर विच इज ब्यूटीफुल, मतलब देर इज अ टाइगर एंड दैट टाइगर इज इनसाइड अ सेल। ओके, एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स on his back, on his whole body. Okay, and he moves about in his cage. Okay, वह अपने पिंजरे के चारों और अपने पिंजरे के इर्द गिर्द में ही घूमता है, where there is a limited area, जहाँ पे एक उनका लिमिटेड एरिया है। he moves with quiet rays on its soft. Okay, his leg is very velvet. यहाँ कवि ने एक दूसरे वर्ड के साथ कंपेयर किया वेलवेट फिट के साथ, कि जो टाइगर का जो पाँव होता है वह बिल्कुल वेलवेट फिट के जैसा होता है। वाई यू नो, बिकॉज व्हेन ही वॉक्स इनसाइड द सेल दैट टाइम नो एनी सिंगल साउंड कम्स फ्रॉम द ईयर। तो इसीलिए उन्होंने कंपेयर किया कि जो आपका टाइगर है वो जब अपने सेल में जब वॉकिंग करता है, स्टॉकिंग करता है, तो एक सिंगल आवाज़ भी बाहर नहीं आती है। तो ही मूव्स विथ क्वाइट रीज, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कवि है वो जस्ट ऑपोजिट एक्सप्रेस किया है, कि जब टाइगर गुस्सा होता है तो वो अपने आप को दहाड़ता है, एक्सप्रेशन शो करता है, फ्यूरियस एक्शंस दिखाता है। बट यहाँ पे जो है वो टाइगर बिल्कुल बेचारा क्रोधित में है, गुस्से में है, लेकिन बिल्कुल शांत है। देखिए यहाँ पे दिया होता है क्वाइट रेज ऑन इट्स सॉफ्ट वेलवेट फीट, ही डजंट सीम हैप्पी इन द जू। और वह चिड़िया खाना के अंदर में, उस पिंजरे के अंदर में अपने आप को उतना खुशी नहीं पाता जितना कि उसे बाहर में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइगर इन अ जंगल, कि जो
टाइगर जंगल में होते हैं वे क्या करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है. सो लेट अस सी प्लीज. द टाइगर शुड बी लिविंग इन द जंगल. The tiger should be living in the jungle. He should be hiding in the long grass. He should be lurking near the pool of water where well-fed deer pass. Okay, the tiger which is inside the jungle, the tiger which is in the jungle, okay, they feel very comfortable, they feel very freedom, they feel quite good in that of the places because where they want to go, they can move easily. Okay, no one is there, no one can control, no one is there to restricate them. तो दैट इज़ हाउ दे फील वेरी हैप्पी. ओके, और यहाँ पे जो टाइगर है अगर वह जंगल में होता तो बहुत ही अच्छा उसे महसूस होता स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे हम देखेंगे लर्किंग. लर्किंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टे हाइडिंग, यानी कि घात लगा करके छिप रहना. ठीक है. सो द टाइगर शुड बी लिविंग इन द जंगल, मतलब जंगल में ही टाइगर को होना चाहिए. ही शुड बी हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास, और उसे अपने बॉडीज को, अपने आप को मतलब लंबे लंबे घासों के पीछे छुपा लेना चाहिए. ही शुड बी लर्किंग नियर द पूल ऑफ वाटर वेयर वेल फीड डियर पासिस. अक्सर करते क्या है टाइगर, क्या करते हैं कि मतलब एक ऐसे इलाके को तलाशते हैं जहाँ पे एक तालाब होता है, मतलब एक ऐसे एरिया को तलाशते हैं जहाँ पे एक तालाब होता है. तालाब के अगल बगल में जो लंबे लंबे घास होते हैं वहाँ अपने बॉडी को छिपा करके रहते हैं, घात लगा करके बैठे रहते हैं. सो एज द डियर कम्स to take a water, definitely he will try to attack on them and he will kill them, right? So that is why he tries to hide his whole body under the long grasses, and when another animals come there to take a water, at that time they try to attack and he tries to attack there. So it is happen there when the tiger is in a jungle. Now students, we will discuss in the next point, that is here terrorizing the villagers. Okay, so what is the mean of the terrorizing the villages, we will try to cover here. So guys, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि sometimes the tiger lives at the edge of the jungle near a village, मतलब the village which is just beside a jungle. Okay, मतलब वैसे प्रकार के गांव जो जंगल के बिल्कुल आमने सामने हो, जंगल के ठीक बगल में हो, जंगल के ठीक समीप में है. तो अक्सर टाइगर क्या करते हैं कि द टाइगर ऑफनली कम्स आउट फ्रॉम द जंगल एंड ही enters into the village. So once he enter into the village, he always tries to frighten to the people to demonstrate his white fangs. White fangs का मतलब क्या होता है, उनका जो लंबे लंबे और जो सादे सादे व्हाइट कलर का जो दांत होता है वो अपने पंजे को दिखा करके, अपने क्लॉज को दिखा करके लोगों को क्या करते हैं, डराने का प्रयास करता है उन सारे टाइगर्स लोग. ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर गाइस द टाइगर सेल. ठीक है, द टाइगर सेल. अनफॉर्चुनेटली द टाइगर इज लॉक्ड अप इन अ स्ट्रॉन्ग केज, मतलब अभाग्यवश इसे बोला जाए कि टाइगर को मतलब पिंजरे के अंदर में बंद कर दिया जाता है. सो व्हेन अ टाइगर इज लॉक्ड इनसाइड अ केज, हाउ डज ही फील? ही फील्स वेरी एफर्टलेस, ही फील्स वेरी टायरलेस, he feels very useless. He also will think that means he doesn't have own capacity. Okay, so it happens all his strength lies useless behind the bars. मतलब उनके पास जितनी भी ताकत होते, सारा ताकत उनका बेकार हो जाता है. बिल्कुल वो अपने आप को यूजलेस समझता है जब वो बार्स के अंदर में होता है. He ignores the visitors who come to see him in the zoo. स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करेंगे कि द पीपल हु गो फॉर विजिटिंग इनसाइड द जू, मतलब वैसे प्रकार के लोग जो चिड़ियाघर में जाते घूमने के लिए. एंड व्हेन दे ट्राई टू सी द टाइगर, सो द टाइगर ट्राइज टू इग्नोर द पीपल, इग्नोर द विजिटर्स, बिकॉज व्हेन पीपल सी देम, okay, at that time tiger shows his furious actions. Okay, he tries to stalks, okay, he tries to attacks, he tries to roar on the people, but he is not able to do because he is under the bar. So that is why he ignores the people. Now we will discuss the last point, that is the brilliant stars of this summary. At night the tiger hears the sound of the patrolling car which move around the zoo. Students यहाँ पे फोकस करेंगे कि जब रात होती है, when night falls, okay, the tiger hears a sound. अब ये कौन सी साउंड को सुनती है, कौन सा साउंड को सुनता है? जब पुलिस
मतलब जब वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं उस चिड़ियाघर के अगल बगल में, जो वो गश्त लगाते हैं, उस समय उनका आवाज़ उनके कानों तक पहुँचता है, तो वो क्या करता है, हिज ब्राइट आइज स्टेयर एट द स्टार लिट स्काई. ओके, द टाइगर start to see the sky. Okay, and he seems to be cursing his stars which have put him in a hopeless case. और वो अपने आप को उस स्टार के साथ, उन सारे तारों के साथ जो आकाश में है, उसे वो कर्सिंग करता है कि आपने मेरे को यहाँ पे इस छोटे से पिंजरे में क्यों डाल दिया. वह अपने आप को, खुद को बहुत ही ज़्यादा हॉपलेस समझ रहा है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टाइगर है बहुत ही ज़्यादा हॉपलेस समझ रहा है. सो नाउ गाइज, हियर वी हैव जस्ट सीन द explanations of the exercise, the summary of this exercise. So now we will go for the explanations from stanza 1, stanza 2, stanza 3 and stanza 4. Okay, so see please. Stanza number 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. Race का मतलब स्टूडेंट होता है क्रोधित, गुस्सा करना, और क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत. ओके, एंड आपका विविड जो लिखा हुआ, विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट. स्ट्राइप्स का मतलब आपको मैं बताया था पट्टियां. स्टॉक्स का मतलब बताया था अकड़ करके चलना, वॉक्स विथ राइडली. सो द स्टैंजा नंबर 1 सेज, द पोएट सेज हियर, द टाइगर विथ हिज क्लियर ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स टेक्स अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केस ऑन हिज सॉफ्ट क्वाइट वेलवेट फीट इन हिज साइलेंस एंगर. कभी यहाँ कहते हैं कि जो टाइगर है वो बिल्कुल क्लियर है, उनके बॉडी पे क्लियर स्ट्राइप्स नज़र आ रहा है, और वो एक छोटे से एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में बहुत ही कम स्टेप को ले पा रहा है. उसके जो पाँव है बिल्कुल वेलवेट के जैसे हैं, वेलवेट के बने हुए हैं. जब वो चलता है तो किसी प्रकार का आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं आता है, बिल्कुल साइलेंस मोड में चलता है. उसके बावजूद भी वह बहुत ही गुस्सा होने के कारण भी वह बहुत ही शांत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और जो लेस्ली नॉरिस है, ऐसा इन्होंने एक्सप्रेस किया है. नाउ वी विल सी द स्टैंजा नंबर 2. He should be lurking in shadow, sliding through the long grasses near the water hole where plum deer pass. He should not be in the cage. मतलब टाइगर को केज के अंदर में नहीं होना चाहिए, बट मूविंग सीक्रेटली थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस इन द जंगल. टाइगर को मतलब रहस्यमय तरीके से उन सारे घासों के, लंबे लंबे घासों के पीछे छिपना चाहिए, जहाँ पे हिरन लोग पानी पीने के लिए आते हैं, और उन्हें अटैक करना चाहिए, उसे अपना शिकार बनाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए. Now student, we will go for the discussion about stanza number 3. So stanza number 3 is here. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling का मतलब होता है तेज तेज से गुर्राना, तेज तेज से चिल्लाना. So he should be roaring near the houses situated near the edge of the some forest. वैसे प्रकार के गांव जो ठीक जंगल के बगल में स्थित है, वहाँ पे जाकर के वहाँ के लोगों को स्नार्लिंग करना चाहिए, वहाँ के लोगों को डराना चाहिए. He should bare his teeth and terrorize the villagers with his claws. मतलब वहाँ पर जाकर के अपने वाइट फंग्स के जरिए से, अपने क्लॉज के जरिए से लोगों को थ्रेट करना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए, धमकाना चाहिए. So now student will go for the discussion about the stanza number 4, and the stanza number 4 is here. But he is locked in a concrete cell. He is strained behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is in reality imprisoned in a concrete cell. वास्तविकता में उसे एक छोटे से कंक्रीट सेल के अंदर में डाल दिया जाता है. In spite of his immense strength, he finds himself behind iron bars. वह अपने आप को काफ़ी यूजलेस, काफ़ी हॉपलेस, काफ़ी एफर्टलेस पाता है उस जगह पे जहाँ उसे बंद कर दिया जाता है. गाइस, he moves slowly to and fro in his cage and pays no attention to the visitors. वह धीरे धीरे शांत रूप से मतलब वॉकिंग करता है उस केज के अंदर में, और जब कोई भी विजिटर्स वहाँ पे देखने के लिए जाता है, उन सारे विजिटर्स को वह इग्नोर करता है. नाउ वी विल डिस्कस द फाइनल पॉइंट, दैट इज हियर स्टैंजा नंबर 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. At night he hears the last sound of the patrolling cars. अंत में रात को वह पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है, जब पुलिस उस चिड़ियाघर के अगल बगल में पेट्रोलिंग कर रहा होगा.
Then he wistfully stares with his bright eyes at the shining stars in the sky. उस समय रात को मतलब जो चंद्र जो आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, उन सारे टिमटिमाते हुए तारे की तरफ वो मतलब घुर्रा करके स्टेयर करके वो देखने लगा गाइस. So it was the explanations of this A Tiger in the Zoo. So students, we will see next point, that is a title, okay, and we will also see that is the theme of the lesson. So first of all we will discuss for the theme, then we will go for the message of the title. So student, we have to take care here. A tiger in the zoo brings home the point that freedom is very important both to humans and animals. टाइगर इन द जू एक ऐसे मतलब चीज़ लाता है हम लोगों के लिए और हमें यह बताना चाहता है, और इस कविता के माध्यम से हम समझ भी सकते हैं कि फ्रीडम दोनों के लिए ज़रूरी है. फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल एज वेल एज फॉर द वुमेन्स. ओके, पीपल्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स. नो एनिमल्स कैन बी हैप्पी इन अ केज. किसी भी एनिमल्स को अगर हम पिंजरे के अंदर में बंद कर दें तो वह अपने आप को अच्छा महसूस नहीं पाएगा. द केज टाइगर हैज़ लिटिल स्पेस टू मूव अबाउट. और जो पिंजरे में जो एनिमल बंद है उस एनिमल को बहुत ही कम जगह दिया गया है जिसमें वो अच्छे तरीके से मूव भी नहीं कर सकता है. अबाउट नेचुरली ही इज सैड. और वास्तविकता में प्राकृतिक रूप से वह बिल्कुल सैड है. He should have been in the forest hiding in the long grass or lurking near the some pool of the water in order to pounce upon his prey. उसे मतलब एक जंगल में होना चाहिए, उसे लंबे लंबे घास के पीछे अपने घात लगा करके बैठे रहना चाहिए, वह अनदर एनिमल्स को अपना शिकार बनाया जाना चाहिए. मतलब ऐसा एक्टिविटीज़ होना चाहिए टाइगर के साथ उन जंगलों में, बट ऐसा उनके पास नहीं हो पा रहा है. सो बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ही इज़ इन कैप्टिविटी. यह बिल्कुल संभव नहीं है. अगर हम उसे कैप्टिविटी करके रखेंगे, उसे अगर हम बंदी बना करके रखेंगे तो ऐसा हम कभी नहीं पा सकते टाइगर के साथ. Another point which is stressed by the poet indirectly is the preservation of the wildlife which is possible only by the afforestation. यहाँ पे कवि इनडायरेक्टली रूप से अप्रत्यक्ष रूप से स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो जंगली जीव होते हैं, उनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उनका बचाव होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, विच इज़ पॉसिबल ओनली बाय एफोरेस्टेशन. तभी संभव हो सकता है स्टूडेंट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएंगे, जब हम वनों को बचाएंगे. If we continue to cut down trees and destroy natural habitats of the animals, अगर हम लगातार पेड़ों को, प्लांट्स को काटना शुरू कर देंगे, जंगलों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, तो वैसे स्थिति में यह संभव बिल्कुल नहीं होगा. The animals will either perish or become a danger to those who live on the edge of the forest. अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स को, वाइल्ड एनिमल्स को मार देंगे या फिर ट्रीज को, प्लांट्स को काट देंगे, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वैसे प्रकार के गांव, वैसे प्रकार के विलेज जो ठीक जंगल के बगल में स्थित है, वहां के लोगों के लिए बहुत ही खतरा मंडरा सकता है. क्योंकि जब जंगल में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कि टाइगर वो गाँव में प्रवेश कर जाएगा और गाँव के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देगा. दैट वॉज बैड इंडिकेशन, सॉरी, दैट विल बी बैड इंडिकेशन फॉर द पीपल दोज हु लिव नियर बाय द फॉरेस्ट. Okay, so it was the theme of the exercise. So guys, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे कमेंट करें, इसे